Say that it's mandatory. Just the first reaction to these 6 days of humongous, gigantic success. Obviously, I'm as humongously and as the tsunami has hit of happiness, it's hit me also. The tsunami of the box office collections is nothing short of miraculous, and I think that it's so lovely. Yes, we thought that Gadar's curiosity for part 2 would be there because Gadar 1 was loved so much that it lives in the hearts of people till date. Tara and Sakina are people who live in every Indian's heart with the film. But I think Sunny ji and I both knew that people would be curious कि 22 साल बाद अभी तारा सकीना के खानदान में होता क्या है और उनकी दुनिया कैसे चल रही थी. But God has been very kind, and I would like to thank all of y'all and the audiences because आप सब लोगों ने इस फिल्म को गदर फिर से मत बना दिया. I'm sure there were no expectations when the first film had come around. People have told about it time and again. And this time around, 22 years later, like what were the honest expectations? Did you expect this kind of? No, like I said to you, I answered that already. That मालूम था कि गदर एक ऐसी फिल्म है जो हर हिंदुस्तानी को बहुत अच्छी लगती है and उनके दिल में बसी हुई फिल्म है. तो it will definitely raise curiosity for people to see it कि अभी सकीना और तारा के खानदान में होता क्या है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है. लेकिन ऐसी सुनामी बॉक्स ऑफिस पे आएगी जो रिकॉर्ड ब्रेक कर देगी, ये ऑफ कोर्स नो वन कैन प्रिडिक्ट. And we're very humbled and thankful and grateful to God first of all, and then our lovely audiences who's made Gadar 2 again a national anthem again of the country, so it feels very, very blessed by God, and the love of the audiences is of course number one. हमेशा जब गदर 2 के बारे में आपको मतलब ऑफर हुआ कि करनी है तो आपका रिएक्शन क्या था? क्या उससे पहले आपने कभी अप्रोच किया था जिस तरह की गदर 1 की सक्सेस थी कि चलो गदर बना दी जाए जो भी? सॉरी, अनिल शर्मा सर के साथ कभी आपको डिस्कशन हुआ था कि कभी गदर 2 पे काम करना चाहिए या फिर उन्होंने ऑल ऑफ सडन आपको कहा कि चलो गदर करनी, तो आपका रिएक्शन क्या था? वेल 20 साल पहले, क्योंकि 2 साल शूटिंग में चले गए, उन्होंने कभी गदर का जिक्र नहीं किया क्योंकि लेगेसीज जो होते हैं वो बार बार नहीं बना सकते, तो थोड़ा सा डर भी रहता है कि जो एक्सपेक्टेशंस राइड होंगे to make a sequel. It's not an ordinary sequel of a normal film. ये कॉमेडी फिल्म नहीं है ये कि सीक्वल पे सीक्वल बनाया जाए. It's too iconic a film, and गदर को शोले, मुगले आजम का दर्जा दिया जाता था, गदर एक प्रेम कथा को, कि ये हिंदुस्तान की आइकॉनिक फिल्में हैं जो आर्काइव्स में फिल्म इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई जाती है एज अ फिल्म, टू स्टडी फिल्म्स. बट सो छेड़ना नहीं था वो लेगेसी को कि एक्सपेक्टेशंस इतनी होगी तो उससे बढ़कर कैसे कहानी आ सकती है. लेकिन गदर 2 ने तो सबके एक्सपेक्टेशंस से बहुत ज़्यादा कमाल कर दिया है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. Amisha, you had, if I can say, you had a roller coaster career yourself. You started with a bang, then there were ups and downs, and you've been largely like an enigma, if I can say that. So does that all the more makes this success special to you? See, the thing is that even after Kaho Na Pyar Hai, Gadar, I had hit films like Humraaz, Bhool Bhulaiya, Farhan Akhtar's Honeymoon Travels, Race 2 with Abbas Mastana. I did some good films with Mahesh Bhatt, with Ye Hai Jalwa with Salman Khan, films with Sanjay Dutt, Ajay Devgan, Mangal Pandey with Amir Khan. But iconic films benchmark इतना high set कर देती है. Expectations of people, they wanted to be as larger than life and as big as the hit that you've just given. So in that comes the disappointment because हर फिल्म तो गदर नहीं बन सकती, हर फिल्म तो मुगले आजम नहीं बन सकती. तारा सिंह और सकीना बहुत खुश नसीब है कि उनको एक पार्ट 2 मिला, फिर से वो चाहते किरदार. They are getting disturbed and looking, so please guys. सो इतने चाहते किरदार को फिर से निभाने के लिए चैलेंज था कि हम गदर 1 की एक्सपेक्टेशंस को मैच कर पाएंगे कि नहीं विद गदर 2. तो ये हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है आई थिंक फॉर एनीवन इन्वॉल्व्ड इन एन आइकॉनिक फिल्म.
टॉम क्रूज ने हॉलीवुड में करके दिखाया लास्ट ईयर विद मैवरिक. 30 साल बाद टॉप गन का पार्ट 2 आया, एंड आई एम श्योर ही मस्ट हैव बीन एज नर्वस एज यू, बट द वर्ल्ड लव्ड द फिल्म. तो बस गदर 2 की कहानी भी कुछ ऐसी है कि गदर 1 से एक्सपेक्टेशंस थे, बट पीपल आर लविंग गदर 2. बट इट्स ऑलवेज हार्ड, and every actor's life is a roller coaster. I think every business is a roller coaster. You know, life is like this. Life कभी ऐसी ही नहीं जाती, ऐसी जाके फिर नीचे आती, फिर ऊपर जाती है, stays stagnant for some time. So yes, it's a beautiful feeling that to have yet another iconic film for all of us under our belts. It's definitely a very nice So how feeling. was Sakina or Gadar? How did the Have you seen the character- film? Yes. Then- But I want to ask your journey. So Sakina is Sakina, gracious, elegant, soft-spoken, very dignified, and has always had the courage to face problems. Whether in part 1 जब वो अपने पिताजी के सामने, अबू जान के सामने, वो अपने हस्बैंड के लिए लड़ सकती है, झगड़ सकती है, और खुशी से हिंदुस्तान रवाना हो जाती है. So Sakina has always been a very admired and loved character. Now for the next chapter, there had to be a little bit of that familiarity with Tara Singh, because now it has been 17 years of their married life also that you all are seeing since the Gadar 1. And I think that the beauty and the essence of Sakina has remained, and she's just seasoned like all people do with the next chapter in their lives. But the nuances of Sakina, I don't think changed from Gadar 1. She's still that pristine character that people had loved, So, and I think Tara Singh as well, the innocence, the charm, the cuteness, their magical love story. I think people have just loved when they saw Urja Kali Kawa the first time around, when it came on YouTube and everything. People went crazy just seeing that. And they, at that time only said ki Tara Singh and Sakina are back, and they're happy to see their chemistry and all. So, to maintain Sakina's nuances wasn't difficult at all, because Sakina मेरे लिए बहुत ही प्यारी कैरेक्टर है. मेरे पूरे करियर की कैरेक्टर देखो, यहाँ पे सकीना हमेशा का पेंडेंट भी पहना है मैंने. So ऐसे किरदार बहुत कम मिलते हैं, and she's lived with me for 24 years now. Even before there was any planning of Gadar 2, Sakina has always lived with me. Amisha, when you talk of a great, if I say image, जैसे अगर हम शोले की बात करते हैं तो गब्बर सिंह आता है. जाहिर है गदर में तारा सिंह है, सकीना है, और अशरफ अली. शायद उससे ज़्यादा शायद वो हैंडपम्प है. बट कितना मुश्किल होता है कि 20-22 साल के बाद भी आज लोगों से कहना कि देखिए वो हैंडपम्प उसकी जगह है, वो भी लेजेंड है. लेकिन ये दोनों कहानियाँ एक प्रेम कथा है. तो जैसे मैंने कहा, ये परिवार की कहानी है. पहली भी वो कॉर्टशिप पीरियड था तारा और सकीना की. एज डिफरेंस है सकीना और तारा में, क्योंकि जब पार्ट 1 में तारा सकीना से प्यार करते तो ही वॉज ऑलरेडी अ वर्किंग पर्सन, अ ट्रक ड्राइवर, एंड सकीना सिर्फ कॉलेज में थी. तो शी डिड मैरी समवन एल्डर देन हर, एंड विद द गुडनेस ऑफ हर हार्ट शी फेल इन लव विद हिज प्योरिटी एंड हिज गुडनेस. And Tara Singh's purity and goodness अभी भी झलकती है. When you see the film, you can see that he is exactly the same. लेकिन we are very lucky, क्योंकि आइकॉनिक हिट्स, आइकॉनिक कल्ट फिल्मों को पार्ट 2 कभी नहीं मिला है हिंदुस्तान में. ना मुगल आज़म, ना मदर इंडिया, ना दिलवाले दुल्हनिया, ना शोले. तो पहले तो आइकॉनिक फिल्म का हिस्सा बनना एक एक्टर के लिए बहुत खुशनसीबी है, क्योंकि वो हर एक्टर को भी नहीं मिलता. And Sunny G and I got it 2 times round with Gadar itself, with our same character. So that in itself is most unique, and most heartening that people have loved, them so much that they 20 years later also, 22 years later, they've thronged the audience, has thronged to the cinemas, जहाँ सीटें नहीं मिल रही है. So it's a very nice feeling. अनिशा मैम, एक जब गदर 2 के बारे में, उसमें आप खुद देखोगे तो किस फूड में देखना चाहोगे अगर 3 बनती है तो? फिलहाल तो 3 के बारे में मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, क्योंकि 2 अब तक इतनी धमाकेदार चल रही है. आई थिंक सबको सेलिब्रेशन का टाइम है, एंड बट डेफिनेटली गदर 3 में आई थिंक द फैंस एंड द ऑडियंसेस will want to see more of Tara and Sakina.
एंड आप हाँ नॉट कर Quite रहे aged. हैं, यस या, सो वही फीडबैक भी वही आ रही है. देखो क्या होता है ना कि हर बार सकीना पाकिस्तान में फंस नहीं सकती. इस बार हमें कुछ दूसरा देना था दर्शकों को, क्योंकि नहीं तो उनको लगता कि क्यों वापस पाकिस्तान जा रहा है सिर्फ सकीना के लिए. सो ऑब्वियसली सनी जी और मैं, वी आर नॉट इनसिक्योर एक्टर्स. सनी जी वॉज ओके कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ द हाफ ऑफ द फिल्म हैज़ हिम मिसिंग फॉर क्वाइट अ बिग चंक, और वो सकीना का हिस्सा है, वो इमोशनल हिस्सा है वेयर you know Sunny Ji is not on screen, and Sunny Ji was okay with the second half being played by him. I was okay to be missing in lots of parts of the second half, because as actors we thought of the script first. कहानी पहले आती है. पूरे फिल्म में अगर हीरो हीरोइन रहेंगे भी और फिल्म नहीं चलती तो फ़ायदा क्या अगर स्क्रिप्ट वीक हो. तो गदर 3 में ज़रूर लोग जो फीडबैक दे रहे हैं, दे वांट टू सी मोर ऑफ तारा एंड सकीना दिस टाइम. वो उनकी एक्सपेक्टेशंस है, एंड आई एम थैंकफुल टू माय ऑडियंसेस फॉर वांटिंग दैट, बिकॉज तारा एंड सकीना आर सो लव्ड. तो अगर गदर 3 होगी तो आई एम श्योर द प्रोड्यूसर डायरेक्टर आर नोइंग द कमेंट्स एंड the love for Tara and Sakina. I'm sure if any of us have to be a part of it, it'll have to be a wholesome film for sure. ये दो लोगों को बहुत मिस किया जो इंटेग्रल पिवटल पार्ट थे गदर 1 की. विवेक शौक जी, जिन्होंने इतना एंटरटेन किया सबको इतनी फिल्मों में, और उनकी शुरुआत हुई थी गदर से, जो दरमियान सिंह का रोल उन्होंने गदर 1 में किया था. And unfortunately he passed away at a very early age, which was very saddening for all of us. And Amrish Puri ji, of course we miss them. लेकिन मैं फिर से दोहराऊंगी कि अमरीश पुरी जी could not have come back as a villain yet again, क्योंकि अगर आपने गदर 1 को याद किया है तो वो खुशी खुशी बेटी को विदा कर देते हिंदुस्तान. So the question of him being a villain would not have been correct again. And Manish Wadhwa ji has done a tremendous job. एंड लाइक मनीष जी ऑलवेज सेज नो कि अमरीश जी के जूते को फिल करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि डायरेक्ट कंपैरिजन. लेकिन ये रिलेशनशिप अलग था. वहाँ एक बाप बेटी का रिलेशनशिप था, यहाँ एक आर्मी जनरल का है. सो everyone's gone with the story, and I think now they're happy. They've given him lot of love as well. Misha, you spoke about And he also is the firm believer कि फिल्में चलनी चाहिए. देखो गदर 1 भी लगान के साथ आई थी. Yes, Amir Khan ji was also large enough to say that Gadar was a monster of a hit in comparison to लगान. लेकिन दोनों चली थी, एक थोड़ी कम एक थोड़ी ज़्यादा, वो तो होते रहता है. बाबी और ओपनहाइमर में भी यही हुआ था, दोनों सेम डे पे आए. हॉलीवुड हो या हमारी इंडस्ट्री, there's only that many Fridays in a year to release your films. तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ओ माय गॉड भी चल गई, बाबी ओपनहाइमर भी चल गई, बिकॉज देयर वॉज अ लल ऑफ मूवी गोअर्स इनटू सिनेमास. एंड बेचारे जो सेट के पीछे से जो फिल्म स्टार्ट होती है रिलीज तक, थिएटर वाले, आपके फूड स्टॉल जो समोसे बेच रहे, पॉपकॉर्न बेच रहे, एवरीवन नीड्स एम्प्लॉयमेंट, एंड दिस कैन ओनली हैपन व्हेन फिल्में चलेंगी. तो आई एम द एडवोकेट कि हर फिल्म चलनी चाहिए. एवरी फिल्म शुड वर्क. इट इज़ गुड फॉर द फिल्म इंडस्ट्री दैट एवरी फिल्म वर्क्स. Amisha, you